So let us move to next topic. It is on human energy. Okay. Nomenclature is somewhat, it may seem some strange, but it is not so. Human energy. Next. So दादा भगवान कहते हैं कि इगोइज्म समस्त शक्तियों को खा जाता है और ऊपर से मार खिलाता है सबूतम। तो एक उनका एक सेंटेंस है जो मानव ऊर्जा को डिस्कस करने के लिए, उसके पहले हम लोग ये वेस्टर व्हाट इज द बिगेस्ट वेस्टर ऑफ एनर्जी वो भी देखना है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा हम उत्पन्न तो करते हैं, उत्पन्न होती है, मगर उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो भी देखना है। ओके, सो दैट इज वन थिंग कि so many of things in our life, many of our accomplishments, they are nature's gift, and we should not think that I am so and so and I am doing so and so. It is not a fact. Dada Bhagavan was giving a very very crude example. People would not like to listen also, but it is a fact. बोलते हैं कि आपको जब टॉयलेट जाना है तब जा सकते हो क्या? सिंपल थिंग, you can't go. Not even a simple daily task of going to toilet is not within your control. Its timing is not within your control. Okay, you can't go at your whims, at your will. What else you can do? Because everything you do is supported by so many factors. So never cherish a feeling of ego within yourself for anything. Okay, next. So here the author discusses this very important chapter. It is linked to occupation. Okay, that's why this occupation session was first. Okay, the kind of occupation we have got depends upon the kind of energy we have. Many of you are employer also. आप senior लोग हैं, you are employing other people. On what basis you employ? Even you are employed, the people who employed you, on what basis they employed you? The basis is your some energy. Okay, based upon that you are employed, and based upon that kind of energy, because so many kinds of energies are there. He has discussed only few kinds, but within each section there are different kinds of energy person has. Okay, he says all human beings have some mechanical energy. सबसे पहले क्या, शारीरिक शक्ति, मैकेनिकल एनर्जी उनको कहते हैं, इनेबलिंग देम टू डू मैनुअल वर्क। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तो कुछ शारीरिक काम तो करना पड़ता है, चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है, राइट, सांस लेनी है, ये सब करते हैं। एंड अगेन इट दिस इज कनेक्टेड विथ योर फूड ऑल्सो, तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। ग्रॉस वर्क के लिए ग्रॉस एनर्जी, वो हमने उस वक्त फूड के सेशन में लास्ट टाइम देखा था। फाइनर वर्क के लिए फाइनर एनर्जी, स्पिरिचुअल वर्क के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी, the food is also connected with that. He says, so for manual work, everybody is has that energy that is required, so that the people can work on farm or factory labor or domestic servant. Even if you are not doing all these things, you still require mechanical energy, gross energy. This is one. Then when subtle mental energy resulting in increased concentration, देखिए आपकी मेंटल एनर्जी फिजिकल एनर्जी के बाद मेंटल एनर्जी आपकी कंसंट्रेशन के लिए जो मेंटल एनर्जी चाहिए वो अगर आप में है, डेवलप हुई मैकेनिकल के अलावा, शारीरिक के अलावा, then man becomes a craftsman like fitter, welder, mechanic, carpenter, blacksmith, artisan, करेक्ट। तो वो कर सकता है। अगर केवल फिजिकल एनर्जी है तो ही कैन डू ओनली मैन्युअल वर्क, लेबर वर्क कर सकता है। मगर उसमें इसके साथ कंसंट्रेशन की एनर्जी आई, देन ही कैन बिकम ए गुड आर्टिसन, देन ही विल बी इन मोर डिमांड एंड ही विल गेट मोर वेजेस। ओके, नेक्स्ट। Then when call on mechanical energy is less and brain energy requirement is more, जो काम में, तो क्या है, he will become an accountant, clerk, telephone operator, अब तो है ही नहीं, draftsman, engineer, cashier, accountant, etc. जहां पर उसको concentration की और brain की energy की ज्यादा जरूरत होती है, right? Not only concentration, brain energy भी ज्यादा, सोचने की मतलब thought thinking की energy ज्यादा चाहिए, राइट। तो फिजिकल एनर्जी, कंसंट्रेशन एनर्जी और मेंटल एनर्जी मतलब ब्रेन की एनर्जी। ओके,
When mechanical energy is supplemented with brain energy, value addition starts taking place. Compared to a helper, a clerk is valued more. तो अकाउंटेंट को ज्यादा मिलेगा कि वहां पर उसको ज्यादा थिंकिंग पावर की जरूरत भी है. ओके, उसके आगे नेक्स्ट स्लाइड. फिर आती है स्टिल फाइनल. तो फिजिकल, कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल, इसके आगे क्या है? अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी. कॉन्सेंट्रेशन ऑल तीनों तो है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग. As the brain energy becomes finer, it produces a doctor. Understanding चाहिए उसको. Engineer, lawyer, solicitor, businessman, etc. This requires concentration as well as understanding. Okay. So more valuable होता है दुनिया में. ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत होती है. तो पूरी दुनिया तो डिमांड सप्लाई है, nothing else. If the more, then they will get more. Understanding represent finer form of energy. And value addition is more. In between concentration and understanding, इसमें क्या आता है? Memory, remembrance. They have to remember so many things. Interplay of many factors. They have to understand. Planning, imagination, directions. Okay, receiving direction, giving directions, policy making. All those things are required. That is the final energy. So these people are required in certain places like leadership roles and all those things. Next. There is also further final energy, he says, whereby one can channelize his mental energies. इंद्रिय निग्रह जो गीता में कहा गया है, that also require further finer energy than the previous one, which is required to control the natural instincts of craving. जो आदमी के अंदर क्रेविंग रहते हैं अंदर, राग द्वेष वगैरह, उसको कंट्रोल करने, चैनलाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्रेविंग एंड एवर्जन एंड काम डाउन द वेव्स ऑफ द माइंड, मन को शांत रखने के लिए जो शक्ति चाहिए, इट इज even sparse, scarce, you can say, right? This controlling energy is the subtlest and fetches us the highest. तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा कम मिलेंगे. Partly material and mainly spiritual. Manifestation of this energy is prolific. यहाँ पहुंचने के बाद आदमी की his memory becomes prolific. इतनी विशाल मेमोरी हो जाती है. Sharp observations, तुरंत कोई चीज का सार निकाल देंगे. क्रिएटिंग पैटर्न्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा रहेगा, एंड इंटरप्रिटिंग देम. ओके, नेक्स्ट. ये सब पिरामिड है. जैसे ऊपर जाओगे तो कम लोग मिलेंगे, एंड वी हैव टू प्रोग्रेस इन दोस वेज. दिस एनर्जी प्रोड्यूसेस सुपर पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी. आगे अब जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद सुपर पावर डेवलप होंगे, जिसको हम ऑरा का पावर्स कहते हैं. पावर्स ऑफ हीलिंग, helping people to come out of negativities, proper suggestion, they can guide the people. The energy is having infinite value addition, making it invaluable. इसका फिर कोई वैल्यू नहीं रहता है. वो फिर ऐसा नहीं कि he will be employed somewhere. These people are respected from so many corners, and they can be a spiritual guides. Okay, this final energy, where whatever one wants becomes easily available. उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद उसकी even his, because उसका मनोनिग्रह हुआ है ना, तो he is not after material thing, so he will get his bare necessities easily. Okay, becomes easily available. Okay, and उसके पास skill, memory, calculation, observation, imagination, understanding इतना अच्छा रहेगा. People seek his guidance, come flow to him. Okay, it remains nearly frozen. Such spiritual energy, the author says, remains nearly frozen in most of the people. जैसे हमने जो क्रम देखा ना पिरामिड, तो लेबर में ये सोई रही होगी, इससे ज्यादा थोड़ी जागृत है, इससे ज्यादा ऐसे ऐसे करके डेवलप होती है. But most of the people, it remains sleeping. This energy remains sleeping throughout their life. Okay, so spiritual advancement is nothing but invoking this kind of energy through proper path. Next. So it remains sunk or dormant and is also called hidden. है तो सही, हर एक आदमी में ये सब शक्तियां है, right? Latent and sleeping, coiled,
when the energy might have remained dormant, people look, अभी एनर्जी जब स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे जितने अंश तक जागरूक रहती है तब उतने अंश में हमारा ऑरा वगैरह डेवलप होता है, नहीं होती है तब तक पीपल लुक डल, स्टोन लाइक, stone faced, we can say, but still have the same potential. Everybody has same potential, but only the people, proper spiritual guides, gurus who have attained that stage, last stage, they can invoke this kind of energy in their through that personal. When you meet them personal and get their guidance and blessing, we call it the भारत में हमारा blessing का system है. Okay, that is a very big thing. Okay. Some future births, but still have the same potential in some future births to be perfect human being. Like we have also come from those stages, right? We were at lower stage and gradually we have developed to this stage. Some stages even we may have crossed in this life itself. In future life also we'll be crossing those stages. And that is how these 14 lakh layers of human beings, that phenomenon explains this. Next. So when the inner energy becomes nearly sunk or involved, gravitational purpose, अब जब अध्यात्म शक्ति हमारी जागृत नहीं होती है तो क्या होगा, फिर वो तो ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ ही चली जाती है, वो नीचे की तरफ ही it is attracted. Okay, downward. Usual progress will be downward. Okay, non spiritual energy का जो है. Okay, so nature with attracting everything downward, superimpose this involve apparently extinct ocean of energy with negative, तो फिर नेगेटिव की तरफ चली जाएगी. अटैचमेंट, राग द्वेष, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, एरोगेंस. ओके, along with their by products, उसके by product तो भी रहेंगे ही, fear, nervousness, prejudices, flattery, obstinacy, like that. And over a period of time, फिर आदमी को लगेगा this superimposition becomes so natural, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे के अंदर कोई आत्मा है या नहीं. ओके, तो मेरा कोई कुछ मुझे आत्मिक विकास करना है या नहीं, सब भूल जाता है वो. It becomes totally a body oriented consciousness. It becomes so natural that people feel this is their true nature. Gradually उसको ऐसा ही लगता है कि ऐसे कुछ है या नहीं है. You will find so many people, they may be rich. Here richness is not the connection. Richness here we mean the spiritual richness. अंतस्करण का जो समृद्धि है उसकी बात हो रही है. Okay, so person may be at a lower rank here, he may be a rich outside, but the अंतस्करण may be poor. दादा भगवान के दोनों का बैलेंस है. बाहर जितना ज्यादा है तो उतना अंदर कम होगा. Okay, like that it happens. तो जब अंदर की समृद्धि कम होती है तो आदमी को so many mental problems and restlessness is there. Okay. Then next. So this upward journey we can call it sublimation journey. When this sunk energy is about to open up, it produces a hyperactive pattern. शुरू हुआ ना, where characteristics of pure energy which are love, compassion, forgiveness धीरे धीरे आदमी में डेवलप होता जाता है. एकदम ओवरनाइट नहीं होता है. तो क्या होगा कि आदमी में दोनों चीज साथ में चलेगी. ऐसा पीरियड हमेशा रहेगा. शुरू में बहुत सालों तक रहता है, इवन बहुत जन्मों तक भी रह सकता है कि वो ये युद्ध करता करता महाभारत का अपने आंतरिक दुश्मनों के साथ, क्रोध, मान, माया, लोग भी रहेंगे और ये भी रहेगा. दोनों का युद्ध करते करते आदमी आगे बढ़ता जाता है. समटाइम्स विल फाइंड डाइकोटोमी ऑफ मिक्स्ड पैटर्न भी दिखाई देगी. मगर इसका मतलब यह नहीं है कोई आदमी में ये दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ. ओके, इट डजंट मीन दैट इज नॉट एडवांसिंग. ओके, दादा भगवान कहते हैं कि भारत के सब लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ उनका नजर है ही है, कहीं भी है वो. ओके, दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस. So gradually he will definitely everybody we have to face. The message here is we should not get discouraged with this kind of things कि मैं करना चाहता हूँ फिर भी नहीं होता. ऐसा नहीं, क्योंकि आपने you just begun the journey, so you have to cross that ocean and flood of this. Next. Then misery is the result of this. तो उसको अंदर उसको दुख होता है कि मैं समझता हूँ. तो बोलते हैं दुर्योधन ने कहा था ना
कि मैं धर्म क्या है जानता हूँ, अधर्म क्या है जानता हूँ, और धर्म कर नहीं सकता हूँ, अधर्म छोड़ नहीं सकता हूँ। ये है बात हर एक को लागू होगी, तो ये मिक्स पैटर्न का भी लाइफ रहेगा। तो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमारा परसेंटेज विल बी इम्प्रूव। दैट इज द स्पिरिचुअल जर्नी। ओवरनाइट ऐसा नहीं कि कल तक हम ऐसे थे वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, कोई भी आदमी नहीं होता है। So in that process of spiritual advancement, person may feel inner misery and confusion also. And meditation is the solution. Any type of meditation. Meditation तो हमने अपने कहा था, तो मगर यहाँ पर दादा भगवान धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं, शुभ ध्यान की बात कर रहे हैं। ओके, हियर ही मीन्स ओनली धर्म ध्यान, शुभ उपयोग जिसको बोलते हैं। Whichever type is suitable to one's temperament will unwind the coiled up inner energy level। जो हमने अगले सेशन में भी देखा कि आप प्रॉपरली अपना रोल अदा करते हो, ओके, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेडिटेशन इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, ओके, एंड दैट विल ऑल्सो डेवलप योर ऑल दोस थिंग्स, राइट। आई रिमेंबर वन ऑफ माई रिलेटिव, तो मैं जब दादा भगवान के पास जाता था तो मैं उनके वहां ठहरता था, मेरे बहनों ही होते थे वो, राइट। तो एक दो बार मैं गया तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम ये कहाँ आते हो, क्यों आते हो, क्या करते हो? मैंने बोला यहाँ एक दादा भगवान जी है, उनको दर्शन के लिए आता हूँ। तो बोले ठीक है। हम लोग कहीं उस वक्त क्या है, दादा ने बोला किसको इंटरेस्ट है तो ही बताना, ऐसे प्रचार मत करना, ऐसा उन्होंने बताया था। और अभी भी ऐसा ही है, ऐसा ही होना भी चाहिए। बोलते कि उसको जिसको जरूरत है वो आएगा, लाइक दैट। तो अब मैं दो तीन बार गया, फिर एक बार गया तो बोले कि नहीं मुझे भी दादा भगवान से तो मेरा भी दर्शन करने की इच्छा है। तो जब मिले दादा भगवान ने उन्हें जब ज्ञान दिया, ज्ञान देने के भी वो चले गए, फिर उनको इंटरेस्ट हुआ। तो फिर मैंने पूछा क्योंकि ही नेवर वेंट टू टेम्पल दिस दैट नथिंग, ही वाज अ वेटरनरी डॉक्टर, आई टेल यू। मोहन भाई अभी होंगे तो उनके ब्रदर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। बट ही वॉज सो ओब्लाइजिंग नेचर, किसी को भी फार्मर के साथ उनका लेन देन रहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर है तो लोग बस पशुओं की सेवा करना। किसी के पास पैसा है नहीं है, अगर वो आएगा उसका खाने का पैसा नहीं है फार्मर को, वो भी खिला भी देंगे वगैरह वगैरह। ही वॉज सो ओब्लाइजिंग नेचर। तो अब उनको इस दादा भगवान का अध्यात्म का जब आत्मा का जो ग्रेस मिला, तो मैंने पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ? तो उन्होंने बोला कि कई दिनों तक मुझे मेरा सर नहीं ऐसा लगा, मारू माथुं ज નથી લારા હોય, મને કહે છે એવું મને અનુભવ થયો। Now this type of experience संतोष जी आपने देखा होगा, तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, जब रामकृष्ण परमहंस ने उनको ब्लेसिंग दिया तब उनको ऐसा ही अनुभव हुआ था, राइट। सेम एक्सपीरियंस दिस पर्सन, वेटरनरी डॉक्टर, ही हैज नॉट डन एनी मेडिटेशन, नथिंग, सिंपली ही वाज परफॉर्मिंग हिज रोल रिलीजियसली, ओके, एंड बिल्कुल निष्ठा से जो कर रहे हैं, सरकार पगार तो देती है, राइट। तो he had this kind of thing, so that's how his example came to my mind while talking. So that is because you asked me about meditation, so the meditation is not this only thing. Shubhopyog is rather the correct meditation, okay. So by law of nature, during this unwinding, he will meet a saint, and gradually then he will meet a saintly person. This fellow also met, who will also inject divine wisdom in him according to his capacity. इसलिए दादा भगवान ने कहा था कि आप प्रचार मत करना, वो कुदरत हमारे पास लोगों को भेजती है, आप इसमें दखल मत करो, ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट, benefited with divine wisdom from one spiritual guide, energy and wisdom together will then manifest। जो अंदर है, दादा भगवान भी कहते हैं मैं आपको ज्ञान बाहर से नहीं देता हूं, आपके जो अंदर है उसको जगाता हूं। दिया तो आपके अंदर है ही, उसको मैं जलाता हूं। द फॉर्म ऑफ लव, फिर उसके अंदर लव, कंपैशन, ज्ञान का प्रताप है सब, लव, कंपैशन, फियरलेसनेस, इक्वानिमिटी, फॉरगिवनेस, चैरिटी, इनसाइट, understanding of external truth, receptivity to subtle vibrations, etc., gradually manifest in this spiritual journey and with the grace of realized spiritual guru.
Uncoiling, unwinding of this potential energy is the biggest effort of this soul, producing mysteriously beautiful man and woman. Ultimately, if man or woman reaches that stage, and this is the ultimate human goal and destiny. जैसे दादा ने बताया कि भारत में जन्म का क्या है, तो जिसको परस्पर देव बोलते हैं ना, ओबलाइजिंग, परोपकार, और मोक्ष मार्ग तरफ प्रगति, मुक्ति, मतलब जीवन मुक्ति। नेक्स्ट, तो शक्ति के बारे में दादा भगवान जो समझाते हैं कि लोक कल्याण के लिए जो मन वचन काया की शक्तियों को काम पर लगाओ। आप केवल अपने लाभ के लिए इसे काम पर लगाओगे तो अगले जन्म में 500 साल की आयु वाला रायण, किरनी का झाड़ हो जाओगे, पेड़ बनोगे। लोग आपके फल का आनंद लेंगे, लकड़ियों को जलाएंगे और लोगों के लिए स्वयं कैदी सा जीवन जियोगे। और ये जो हम ऐसे आए हैं, हम भी ये सब वृक्ष का, पशु का, पक्षी का सब जन्म लेते 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 मनुष्य जन्म तक आए हैं। ओके, तो मगर इससे वापस डाउनवर्ड नहीं जाना, वो हमारा पुरुषार्थ है। नहीं, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो नेचुरल कोर्स में तो डाउनवर्ड आदमी जाता ही है। दूसरा बोलते हैं किसी की निंदा का मतलब है 10 रुपए के नोट के बदले 1 रुपया लेना। निंदा का कोई मतलब, हम किसी की निंदा करते हैं मतलब कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ पाप एंड पुण्य, और प्रकृति का सिद्धांत भी हम नहीं समझे कि लोग प्रकृति के अधीन है, तो उसकी कोई टीका निंदा करने को मतलब नहीं है। पर निंदा करने वाला हमेशा नुकसान ही भुगतता है। पर निंदा के कारण हम हमारी शक्ति निरर्थक काम में क्यों लगाए, किससे शक्ति का व्यय होता है। हमारा मन अति चंचल है, किसी को पता भी न चले और छल कर ले, अपने से भी छल कर ले। यदि आत्मशक्ति मन से तन्मयाकार हो गया है तो तोड़फोड़ के बिना आदमी जब पूरा मन के साथ एकरूप हो जाता है तो डेफिनेटली बिल्कुल अशांति ज्यादा बढ़ जाती है। इच्छा ही अंतराय, और बताते आपकी इच्छा ही अंतराय, क्योंकि मैन इज ए गेस्ट ऑफ नेचर। आपको इच्छा की क्या जरूरत है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको 3 दिन पहले की बात बताऊं, राइट। हम लोग हिम्मतनगर से आते थे तो बगैर ने बोला कि पापा कुछ खाना है, मुझे तो डायबिटीज है। मैंने कहा बेटा घुघरा लेके आओ, घुघरा नाम की एक स्वीट होती है। अब तो डायबिटीज वाला तो नहीं खा सकता है, फिर भी मुझे उसने पूछा तो मुझे मन हुआ था, मैंने कह दिया। फिर वो अंदर जाके आया तो वो तो नहीं थी मिठाई। ओके, अरे पापा वो तो नहीं है, ठीक है जो है खाएंगे। या तो फिर और कुछ खाया। अब और कल वसंत भाई घुघरा लेके ही आए, देखो हमने तो कहा नहीं था इनको क्या लाओ। तो मतलब कि इच्छा ही अंतराय है। जब हमने इच्छा छोड़ दिया कि जो मिलता है ठीक है, तो कल वही मिठाई वसंत भी लेके आए, लाइक दैट। ओके, तो इच्छा ही अंतराय, ये सब अनुभव करने के बाद हमको पता चलता है। बादलों के कारण सूर्य का तेज ढक जाता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश अति भावुकता की अवस्था से हम लोग अति भावुक क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ द नेचर फंक्शन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक दैट इफ वी रेजिस्ट द नेचर वी बिकम एक्सट्रीमली ओवर इमोशनल, एंड दैट वेल्स अवर स्पिरिचुअल एनर्जी। आध्यात्मिक शक्ति आवृत्त हो जाती है ज्यादा इमोशनल होने से। ओके, राइट। दैवी शक्ति के अर्जन के बाद भी व्यक्ति का अहंकार अपना सर उठाता रहे, तो सिद्धि के शिखर से उसका पतन हो बिना। आप सो मैंने एग्जाम्पल्स आर देयर, हमने अभी कौशिक मुनि का भी देखा, ठीक है। अहंकार जब आता है तो इस सिद्धि का पतन हो जाता है। सब कुछ दैवी शक्ति के अधीन होता है, पर यदि व्यक्ति अहंकार करे या दैवी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो उसका अधम पतन। इसीलिए जो स्वामी अपने रामकृष्ण परमहंस देव ने जो कहा है कि गृहस्थ का मतलब किले में रहकर युद्ध करना, इसके रेफरेंस में भी इतना उपयोगी है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल कितना प्रोग्रेस भी होगा तो गृहस्थ आश्रम में आप बिल्कुल बैलेंस में रहोगे। ओके, अब साधु हो गए तो कई लोग आपको नमस्कार करेंगे, आपकी सिद्धि खलास हो जाती है। भारत के एक एक मनुष्य में पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति है। दादा भगवान अल्टीमेट कहते हैं कि आपको इतना भी दुख हो, भाई इतना हमेशा याद रहो कि मेरा भारत में जन्म हुआ है, तो इतना बड़ा इटसेल्फ इज ए ग्रेट प्रोग्रेस। ओके, ग्रेट प्राइज हम लोग कुदरत ने हमें
इनाम दिया कि हमारा भारत में जन्म हुआ, कि भारत का मनुष्य में इतनी सारी शक्तियां, मगर वो सुप्त हुई है प्रॉपर चैनलाइजिंग के न मिलने की वजह से, प्रॉपर कंपनी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से। तो सब देखा देखी जो बोलते हैं, औरों का देखकर आदमी करता रहता है। नेक्स्ट, गीता में भगवान ने आगे वही कर्मयोग का ही है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर, ऊपरी सुपरफ्लुअसली ऊपर से दबा कर रखता है मन से, इन इंद्रियों के विषयों का चिंतन तो करता रहता है, अंदर से चिंतन करेगा और बाहर से रोक के रहेगा, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। उसको कुछ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का लाभ नहीं मिलता है, रादर उसको नुकसान भी होता है, क्योंकि वो इज शोइंग ऑफ हिमसेल्फ विच इज नॉट देयर। किंतु ये अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश, तो जो समझ से होता है सब, प्रॉपर नॉलेज इज द राइट थिंग। विज्ञान जो दादा कहते हैं, विज्ञान ऐसे कि जो हमें इसमें हेल्प करता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग में आसक्त रहकर का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ। कर्मयोग का आचरण जो कर रहा है, प्रॉपर कर्मयोग का, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। वो भी क्या, हाउ यू विल मैनेज योरसेल्फ, ठीक है ना। तो एक्टिविटी तो रहेगी, तो एक्टिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी दे गोज टुगेदर। ओके, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करने से नहीं होगा। दिस इज द बिगेस्ट थिंग लॉर्ड कृष्णा आल्सो सेड, दादा भगवान आल्सो रिपीटेडली एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, अब जो कुछ ये सब पार करके जब अल्टीमेट स्टेज पर पहुंच गया है, उसके बारे में कहते हैं जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, जिससे सब कर्म खत्म हो गए हैं, और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो उसकी नकल हमें नहीं करना है। थिंग इज दिस, इंडिया में लोग उसकी नकल करते हैं। उसका रमण महर्षि है तो वहां पर पहुंच गए था, वो बैठे रहेंगे तो भी कितने लोगों का कल्याण होता है। उनके अंदर इतना जगत कल्याण की भावना रहती है कि बैठे बैठे लोगों को लाभ होता है। दादा भगवान कहते कि हम लोग, मैं 10 बाय 10 की रूम में बैठकर जगत का कल्याण करता हूँ। वो तो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं अंदर से, आप हमें बाहर से इनएक्टिव लगेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने, जो कुछ प्राप्त हुआ वो करता रहता है। तो संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं, पूरा परमार्थिक जीवन रहता है। उसकी मियर प्रेजेंस जगत के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट, सो विद दिस फ्रेंड्स वी आर फिनिशिंग बोथ दी सेशंस इन आवर given time, and this session is open for discussion. If anybody want to add something, here we are not doing any questions and answers, we are only learning mutually. Okay, experience sharing is the only system we have adopted here. लाला भाई, जय सच्चिदानंद। ओहो भाई, वेलकम। बस जो आज બંને સેશન ખૂબ શાંતિથી સાંભળ્યા આપને, અને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો। હકીકત આ અપ્લાઇડ સ્પિરિચ્યુઆલિટી બધા લોકો સુધી પહોંચે તો ઘણો બધો એ લોકોને ફાયદો થશે। વસંતભાઈનું પણ આપણે જાણ્યું, આપના જે એક્સપિરિયન્સ છે એના પરથી પણ જાણ્યું, અને ગૃહસ્થાશ્રમની જે કિલ્લાવાળી વાત છે એ ખૂબ અદ્ભુત છે। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ। તમે બધા આનો નિમિત્ત બનનાર છો, બરાબર। આ પેલો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ 1 વર્ષ ચાલશે, then it is being handed over to all of you. Yeah.